بعده أما بعد قال الله تعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم إلى آخر الحديث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معزز صدر ضلع جمعیت اہل حدیث ضلع رامبن مولانا عبدالقیوم السراجی حفظہ اللہ، محترم صدر تحصیل جمعیت اہل حدیث تحصیل پوگل پرستان جاوید احمد سلفی حفظہ اللہ، معزز اور محترم حافظ خورشید احمد مدنی حفظہ اللہ اور دیگر ذمہ داران، علماء کرام، سامعین، سامعات اور عزیز بچوں، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے عصری تعلیم کے ساتھ دینی تربیت نسل نو کو فکری انحراف سے بچانے کا واحد راستہ۔ یہ اس کانفرنس کے ذیلی عناوین میں سے ایک عنوان ہے۔ بڑا عنوان تو جو آپ کے سامنے بورڈ پر لکھا ہوا ہے وہ ہے، تو اس موضوع کے تحت یہ ایک پہلو ہے، ایک شق ہے یا ایک جانب ہے۔ میں مختصر، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں اس وقت زیادہ نہیں ہے میرے پاس، میں مختصراً آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی آپ حضرات کو مولانا مشتاق احمد ویری حفظہ اللہ کا خطاب بھی سننا ہے، جس کے لیے آپ بے صبری سے منتظر ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے ضلع صدر مولانا عبدالقیوم السراجی حفظہ اللہ کے صدارتی کلمات بھی آپ کو سننے ہیں۔ تو میں اس موضوع کو ہر اعتبار سے واضح تو نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ عصری تعلیم کیا ہوتی ہے؟ وہ تعلیم جو ہم اسکول میں پڑھتے ہیں، گورنمنٹ اسکول یا کوئی بھی پرائیویٹ اسکول جہاں انگریزی، سائنس، میتھ یا اور دیگر دنیاوی علوم پڑھائے جاتے ہیں، یہ ہے عصری تعلیم۔ کیا عصری تعلیم پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے، وہ ہماری ضرورت ہے، اور یہ سائنس اور میتھ اور انجینئرنگ وغیرہ یہ کوئی انسان کی ایجاد نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر باتیں بتائی ہیں۔ لہٰذا یہ علوم پڑھنا، میتھ، سائنس، میڈیکل اور دیگر جو بھی علوم آج دنیا والے جانتے ہیں، یہاں تک کہ ٹیکنالوجی، یہاں تک کہ انٹرنیٹ، یہاں تک کہ کمپیوٹر، یہاں تک کہ اور بہت سارے علوم، یہ کسی انسان کی ایجاد نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ساری باتیں بیان کی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ قرآن کو پڑھیے، آپ کو یہ ساری باتیں وہاں مل جائیں گی، یہ علوم سارے وہاں آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ عصری تعلیم ہے، یہ عصری تعلیم پڑھنا ہماری ضرورت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو دنیا بھی بہتر ہونی چاہیے، اس کے بعد ہم آخرت بھی بہتر بنا لیں گے، آخرت کو اچھا بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اس کے لیے توفیق مانگیں گے اور اس کے لیے ہم کوشش بھی کریں گے۔ تو دنیاوی تعلیم پڑھنا، لیکن خالص دنیاوی تعلیم پڑھنا، دین کا دھیان نہ رکھنا اور دین کو چھوڑ دینا، یہ بربادی ہے، یہ ہلاکت خیز ہے، یہ ہمارے لیے سم قاتل ہے، یعنی ایسا زہر جو ہمیں مار دے گا، ختم کر دے گا۔
اور आधा तो हमारे माशरे को इस जहर ने खत्म कर ही दिया है। हमारे जहन क्या बन चुके हैं, हमारे जहनों में क्या है, माद्दा परस्ती, ये इनहिराफ है। इसी को कहते हैं इनहिराफ, यानी ट्रैक से हट जाना, ट्रैक से हट जाना। असी कथन मज वंश इनहिराफ वंश डेलगमुत, ये जो डेलगमुत, तो डेलगमुत गोई हुई कि हमारे जहन में दुनिया बस जाए, दुनिया परस्ती आ जाए। आजकल हम देखते हैं हम में से बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, मर्द है, औरत है, सबको दुनिया की फिक्र है, सब दुनिया कमाना चाहते हैं, सब दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई हमारे पास माल कहां से आ जाए, बताओ हमें जरा कि ये माल कहां मिलेगा, पैसा कहां मिलेगा, कैसे हासिल होगा, इंटरनेट से हासिल होगा, वीडियो बनाने से हासिल होगा, पता नहीं किस चीज से हासिल होगा, हमें ये बताओ, ये पता करो कि कहां मिलेगा तो हम दौड़ पड़ेंगे। ये इनहिराफ है और क्या है, यही इनहिराफ है। इनहिराफ रास्ते से हट जाना। अल्लाह ताला ने हमें जो रास्ता दिखाया वो सिराते मुस्तकीम है, वो इस्लाम है, वो कुरान है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो उस रास्ते से हट जाना ये इनहिराफ कहलाता है। आपको अगर मैं बताऊं, क्योंकि वक्त मुख्तसर है, सबसे पहले इनहिराफ का शिकार कौन हुआ, यानी जो ट्रैक से हटा, जो रास्ते पर नहीं रहा, जो सीधा नहीं चला, वो कौन था जो सबसे पहले इस चीज का शिकार हुआ, इनहिराफ का, गुमराही का या जलालत का शिकार हुआ? वो कौन था? वो इब्लीस था, वो था इब्लीस। इब्लीस, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया और ये इब्लीस ये अपनी इबादत और अपने नेक होने की वजह से फरिश्तों में शुमार होता था। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया, फरिश्तों से कहा और इससे भी कहा कि आदम को सजदा करो, क्योंकि मैंने आदम को बनाया है और मैं हुक्म देता हूं तुम्हें कि इसको सजदा करो। फरिश्तों ने बगैर किसी एतराज के, बगैर किसी सवाल के सजदा कर लिया। इब्लीस ने कहा नहीं, मैं तो आग से बना हूं और आग का काम होता है ऊपर की तरफ चलना, न कि झुकना, तो मैं इस मिट्टी के सामने, मिट्टी के ढेर के सामने कैसे झुकूंगा? तो यहीं पर ये इब्लीस इनहिराफ का शिकार हो गया। इसने कियास किया, इसने अपनी अकल चलाई, हालांकि अल्लाह के हुक्म के सामने अकल की कोई वक़्त नहीं रहती है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के सामने फिर अकल की कोई वक़्त नहीं रहती है। तो इसने ये कियास किया, अकल दौड़ाई और इस बिना पर ये इनहिराफ का शिकार हो गया। और उसके बाद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक 10 सदियां, यानी 1000 साल, 10 सदियां, 1000 साल तक कभी भी दुनिया के अंदर कहीं पर भी कोई शिर्क नहीं हुआ। यानी इनहिराफ, ये फिक्री तौर पर इनहिराफ दुनिया के अंदर नहीं पाया गया। फिर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में शैतान लोगों के पास आया, यही जो पहले इनहिराफ का शिकार हुआ था, फिक्री इनहिराफ, सोच में जो इसकी तब्दीली आ गई थी, सोच बदल गई थी, सोच में कजरवी आ गई थी। तो ये इन लोगों के पास आया और इनसे कहा जो तुम्हारे नेक लोग थे, तुम्हारे जो औलिया थे, ये मर गए हैं, तुम्हें इनके साथ मोहब्बत थी, अकीदत थी, अगर तुम चाहते हो कि तुम उनको अच्छे से याद करो तो ऐसा करो कि इनकी तस्वीरें बना लो, मूर्तियां बना लो, बुत बना लो, उनको देखा करो, बस देखना है, बाकी कुछ नहीं करना है, इनको देखा करोगे तुम्हें अच्छे से ये लोग याद आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर शैतान ने उनको ये रहनुमाई की और आहिस्ता आहिस्ता देखने से लेकर इबादत तक बात पहुंच गई। पहले शुरुआत किससे हुई कि बस सिर्फ याद करना है, देखना है, फिर आगे आगे बात चलते चलते कहां तक पहुंची, इबादत तक बात पहुंच गई। तो ये यहां इस तरह से इनहिराफ, फिक्री इनहिराफ शुरू होता है। अगर आज के दौर में हम इनहिराफ को समझना चाहते हैं, ये इनहिराफ तो है दुनिया के अंदर, फिक्री इनहिराफ यानी अकीदे में इनहिराफ है, अकीदा दुरुस्त नहीं है, उसका अकीदा किसी और से मुंसलिक है, उसकी आस्था किसी और में है, हालांकि होनी चाहिए थी अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ, अल्लाह ताला के साथ उसका राब्ता होना चाहिए था। तो बहरहाल
अकदी इनहिराफ या फिक्री इनहिराफ आज भी मौजूद है। और ये फिक्री इनहिराफ आज हमारे नौजवानों में जो सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं, उनके अंदर ये एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत फैलाई जाती है। उलमा किराम यही बातें आपको बता रहे थे, समझा रहे थे। बस मैं थोड़ी सी अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। प्लानिंग के तहत नौजवानों को इस फिक्री इनहिराफ का शिकार बनाया जाता है। लादीनियत, लामजहबियत या मुल्हिद जिसे कहा जाता है, ऐसे लोग इस सोशल मीडिया के जरिए से तैयार किए जाते हैं जो अल्लाह की जात को नहीं मानते हैं। लोग सवाल करते हैं कि क्या अल्लाह ताला की जात है? अगर है तो वो दिखाई क्यों नहीं देती? ये बच्चों के अंदर सवाल डाला जाता है, जवानों के अंदर सवाल डाला जाता है, और वो पढ़े हुए हैं साइंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग या पता नहीं कौन कौन से उलूम। अगर वो उसमें भी गौर करेंगे तो वहां भी उनको अल्लाह ताला की मारिफत हासिल हो जाएगी। अगर उन उलूम में भी वो गहराई में जाएंगे, सोचेंगे, अकल से काम लेंगे, वहां भी उनको अल्लाह ताला की रहनुमाई मिल जाएगी, मारिफत मिल जाएगी। लेकिन वो सोचते नहीं है, वो इधर के शिकार हो जाते हैं और इधर के शिकार हो जाते हैं, और वो लोगों की लफाजी और लोगों के मीठे बोल और वो मगरिबी जो तहजीब है, या मगरिब के जो लोग हैं, या मगरिब के जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं जिन्होंने कुछ बातें कही हैं, मैं पढ़ रहा था इस ताल्लुक से, तो वो अच्छी अच्छी बातें, जो छोटी छोटी बातें होती हैं, इनको वो बड़ी पसंद आ जाती हैं। तो नौजवान इस तरह से उनके चुंगल में फंस जाते हैं, फिर लादीनियत और इल्हाद के शिकार हो जाते हैं। हमारे जवान, हमारे जो माशरों के अंदर जो लोग हैं, वो इस चीज के फिर शिकार हो जाते हैं। उनको कैप्चर किया जाता है, उनको बाज़ाब्ता तौर पर यानी प्लानिंग के तहत उनको इस चीज का शिकार बनाया जाता है। अब हमारी जिम्मेदारी आती है कि हम इसका मुकाबला कैसे करें, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये कि ये जो इनहिराफ है, ये ट्रैक से हट जाना, ये दो तरह का है। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, ये दो तरह का है। एक है फिक्री इनहिराफ जो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। यानी अगर सोच ही इंसान की बदल जाए तो फिर क्या रहेगा? एक सोच ही अगर बदल जाए, एक अकीदा ही अगर इंसान का छीन लिया जाए, वो ईमान वाला अकीदा, तौहीद वाला अकीदा, आखिरत पर ईमान वाला अकीदा, तकदीर पर ईमान वाला अकीदा, और इस्लाम के साथ मोहब्बत वाला अकीदा, कुरान के साथ मोहब्बत वाला अकीदा, अगर यही छीन लिया जाए, हमारे दिमाग से निकाल दिया जाए, कि हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। ये बहुत खतरनाक है। तो फिक्री अकीदा, ये फिक्री इनहिराफ ये है कि एक, देखिए दो इंसान है, एक इंसान वो जो नमाज नहीं पढ़ता, ये अमली इनहिराफ है। जो नमाज नहीं पढ़ता वो अमली इनहिराफ है। लेकिन उसके मुकाबले में दूसरा इंसान है जो नमाज को कोई इबादत मानता ही नहीं है, नमाज फर्ज मानता ही नहीं है, वो कहता है नमाज है ही नहीं। तो ये फिक्री इनहिराफ है, यानी उसकी सोच में ये चीज आ गई है कि नमाज है ही नहीं, नमाज फर्ज है ही नहीं, नमाज कोई इबादत है ही नहीं। तो ये फिक्री कुफर है। दूसरे अमली कुफर, जो नमाज नहीं पढ़ता है सुस्ती की वजह से, या गफलत की वजह से, या काम की वजह से, या मजबूरी की वजह से नमाज नहीं पढ़ता है, वो अमली तौर पर इनहिराफ है। और दूसरी बात भी समझ लीजिए कि एक इंसान वो है जो कत्ल करता है, एक इंसान वो है जो कत्ल करता है, लेकिन कत्ल करना वो गुनाह समझता है, कत्ल करता है लेकिन गुनाह समझ। दूसरा वो है जो कत्ल करता है और कत्ल करने को हलाल समझता है, जायज समझता है, कहता कि नहीं कत्ल करना अच्छी बात है, ठीक बात है। तो दोनों में कितना फर्क है? वो भी मुजरिम है, वो कत्ल करने वाला, नाहक कत्ल करने वाला बहुत बड़ा मुजरिम है, इस्लाम की नजर में भी मुजरिम है और दुनिया के कवानीन की नजर में भी वो मुजरिम है। लेकिन वो जो हलाल समझते हुए कत्ल करे, वो बहुत बड़ा मुजरिम है, वो बहुत बड़ा मुजरिम है। तो बहरहाल ये जो फिक्री इनहिराफ है, इन्हें सोच के अंदर इनहिराफ, अकीदे के अंदर इनहिराफ, इससे